Okay, hello all. So today we are going to start the first lecture of physics, and I am going to start with vectors. वेक्टर्स एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका टोटल फिजिक्स पकड़ लो, उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारा कोर्सेस में आता है, एंड इट इज़ द थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट समहाउ स्टूडेंट्स उसे इग्नोर कर देते हैं. मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली डोंट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, so they make mistakes which should have been avoided, because ये concept आपका not only first year subject but they will help you understand the second year subjects as well. Means if I say the only mathematical tool apart from calculus which is important in intermediate physics, तो वो है vectors. Okay. So let us now start with vectors. Okay. So before starting vectors, let me ask you a very simple question. Suppose this is the place where you are standing. Suppose this is you, and I ask you to move from this place a distance of 15 centimeter or 15 meters say. So what will you do? You will travel in this direction, say 15 meters, or you may travel in this direction 15 meters, or you may travel in this direction 15 meters, or in any direction. Are you getting me what I am saying? When I ask you, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जस्ट यू मूव, तो तुम जब मूव करोगे 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर से, हियर द एग्जांपल इज फॉर 15 मीटर्स, तो आई हैव नॉट आस्क्ड यू कि तुमको कौन सा डायरेक्शन में जाना है, कि आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है. आई हैव नॉट आस्क्ड यू. सो तो आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो. तो ये तो ऐसा तो नहीं है, आपको पूछना होगा कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि वेक्टर्स कैसे यूज होता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वेक्टर्स. व्हाई ए न्यू क्वांटिटी लाइक वेक्टर्स इज इंट्रोड्यूस इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थिंग्स. कि 15 मीटर कोई ईस्ट में जा रहा है एंड 15 मीटर कोई वेस्ट में जा रहा है, तो देयर इज डिफरेंस. So somebody is asking you, if somebody is asking you like me, I have asked you to move a distance of 15 meters, then the next question that you should ask is in which direction. Okay. So basically यही सब concept को incorporate करने के लिए we use vectors. Okay. So let us now formally start vectors. This was just an example to make you understand कि why vectors are used. So formally, vectors they have magnitude as well as direction. Means any physical quantity. Physical quantity मतलब क्या? कोई भी आपका force हो, like आपका displacement हो, velocity हो, momentum हो, all these physical quantities. Physical quantities means simply said the quantities that we use in physics. Okay, you can understand that this is very layman's term. Physical quantity, कोई भी physical quantity, force हो, momentum हो, चाहे displacement हो, चाहे velocity हो, anything that may be any physical quantity that has magnitude. और उसको समझने के लिए अगर उसका मीनिंग आएगा जबकि उसके साथ डायरेक्शन यूज हो, तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल के बोलेंगे. सो वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सेकंड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दे शुड फॉलो वेक्टर एडिशन रूल. दे शुड फॉलो रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. Okay. This second statement is very important, and
I will explain this a little later. उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ वेक्टर क्वांटिटी क्या है. ओके, और जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर. एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इज टेंसर, विच इज आउट ऑफ आवर स्कोप. हम उसको अभी नहीं समझेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं. ओके, सो वेक्टर्स का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा. वेक्टर्स का एग्जाम्पल में आएगा, इधर आएगा वेलोसिटी, एंड हियर वेलोसिटी का स्केलर इक्विवेलेंट होगा स्पीड. ओके, हियर यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, and here it's distance. I am assuming that most of you know what is velocity, what is displacement, what is speed, and what is distance. If you don't know, then when we will be going through the motion in 1 dimension and 2 dimension motion problems, you will understand those things. Okay, but don't worry. And some other examples of vectors include force. Okay, and you can say weight. Okay, like that. Now how to denote a vector, how vectors are denoted. Okay, say there is a graphical representation. Means what is graphical representation? Vectors are normally denoted by directed lines. Directed lines means they have a arrow which is known as this arrowhead. This is a arrowhead and this is the tail. This is a head. Vectors are denoted like this, with a head and with a tail. Okay, this point is called their tail and this is called their head, this arrowhead. Suppose I say that we have a displacement which is say 5 meter north. Means suppose this is north direction and I have asked you to travel 5 meter in this direction. So when I say that now you draw or you denote a displacement of 3 meter, then there you have to 3 meter in the north direction, then you have to denote it like this. Means when you have taken a reference and you have drawn 5 out here, मतलब आप लोग एक रेफरेंस लेके यहाँ पे 5 बनाए हो, तो इसी का कंपैरिजन में you have to draw 3. Okay, means are you getting me what I am saying? Means मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई ये नहीं बोला कि आप 1 यूनिट बोल के इतना लेना, लेकिन अगर आप 5 इतना ले लिए हो, then you can calculate what is 1 unit from that, and from that you can draw 3. Means simply said कि आपको अगर 5 बनाना है, suppose 5 meter in north direction आपको दिखाना है, you can say it is this or you can say it is this. If you are saying it is this, then आपको 3 के लिए suppose आपको इतना ड्रॉ करना पड़ सकता है, और आप अगर ये छोटा लिए हैं तो 3 के लिए आपको इतना ड्रॉ करना पड़ सकता है. Means are you getting me? Once you draw and once you have taken a reference, you have to go on with that. This is all about the graphical representation, but most of the times we will not be going to the graphical denotations, because we will be going from something else that you will see in the I, J and K caps, etc. Okay, so what we have understood from the above discussion is that in the graphical notations, the length of the arrow specifies the magnitude, and the direction is specified by the arrow head. Means suppose a vector A is denoted like this, so its magnitude is this much from here to here, and
magnitude is this much, okay, and the direction is in this direction. So this is arrow. This arrow head denotes the direction and the length denotes the magnitude. Suppose I say कि a vector equal to 5 meter north. This doesn't mean that this direction is north direction. This is simply a way of representing a vector. Means vector, when I specify a vector, the vectors are specified by putting a arrowhead upon them, or sometimes they are denoted like this, a bar upon that vector. Okay, or in the books you will find that bold letters are written for vectors. Okay, bold letters, पूरा काला काला करके bold करके लिखा होगा. That means also they are vectors. And this is a way of representing a vector, and this is also a way of representing vector. Either you can put a arrow, or you can put a bar, or you can simply draw it in bold. So I don't think that anybody will use this notation. Leave it for books only. Okay, so we will be using basically this or this, and most of the times I will be using this. Okay. Okay. So a vector equal to 5 meter north in this direction, or say 5 meter northeast. Means this direction doesn't specify the northeast direction, or this direction doesn't specify the north direction. Means for to specify the vector in graphical format, you have to specify, take the direction like this. Suppose you are taking this north, this east, this west, and this south, then this vector can be represented by 5 meter north like this. Okay, this is 5 meter, ये 5 meter हो गया, and this is in north direction. Northeast means in this direction, making 45 angle with the east direction as well as north direction, 45 degrees. This is northeast direction. This magnitude and this magnitude are same since both are 5. Okay. Okay. Now let us discuss a new term which is known as what is called magnitude of a vector. Magnitude of a vector is always a positive quantity. You should remember this. It is always a positive quantity. ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. एंड मैग्नीट्यूड को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? सपोज ए वेक्टर एक दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लाइक दिस, एंड और दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज दिस. ओके, एंड although the magnitude of a vector is scalar, but there is some difference. Magnitude of a vector can never be negative, it is always positive. But a scalar quantity means a quantity. Scalar quantity क्या होता है? Means जो quantity को हम specify करने के लिए हमको direction नहीं चाहिए. हम जैसे पहले discuss किए हैं, distance 5 मीटर खाली बोलेंगे, we will not specify any direction. Velocity, we will only specify 5 meter per second. We will not specify any. If we will not specify any direction, then it will be speed. Okay, 5 meter per second means in which direction we do not know. Like that. Okay. हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मीन्स ये हम जो 5 वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ, ये हो गया क्या ना वेलोसिटी वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड अभी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड खाली होगा 5. Okay, means we will not say कि it is -5. Suppose somebody specified a vector like this and said कि it is 5 in east direction, and somebody else has come and he has specified a direction vector which is say this is east, so this will be west, and he has denoted a vector which is like this, 5 meter west. So we will not say that its magnitude is -5 and its magnitude is 5. No, both has magnitude 5. Okay. और magnitude को दिखाने के लिए modulus, this modulus thing you are using, this is called modulus or modulus. So scalars can be negative, but magnitude of a vector can't be negative. It is always
positive. Okay. Okay. Now let us go to the next concept, that is the concept of angle of between two vectors. Angle between vectors. Okay. This is a very simple concept. Okay. Suppose somebody asks you what is the angle between these two vectors. Say this is A vector, this is B vector. Say this angle is 60 degree. So there is another angle. This angle is 300 degree. So by convention, what we take the smaller angle between them as the angle between the vectors. So here 60 degree will be the angle. Okay. Means you will not say it's 300 degree. So when I say angle between the vectors, it will always be greater than 0 degree and it will always be less than equal to 180 degree. Okay. So the extreme case is when the two vectors are in the either in the same direction or in the opposite direction. Okay, like this. Suppose this is A vector and this is B vector. So here the angle between them is 180 degree. Or like this, if the two vectors are in the same direction, this is A vector, this is B vector. So the angle between them is 0 degree. So it will be between these two extremes. The angle between them will be between these two extremes. It will either be 180 degree or be 0 degree. Maximum it will be 180 degree, minimum it will be 0 degree. The angle between two vectors will never be negative. Okay. Okay. Now let us go to the next concept, that is type of vectors. Okay. So let us go to the next concept, that is type of vectors. The first basic type is what I say, first type, it is free vector. Okay, free vectors. Means what are these free vectors? Say, for example, if I ask you to add 5 meter with 5 meter, whether you add it here 5 meter plus 5 meter or you add it here 5 meter plus 5 meter, this will always be 10 meters. Okay, this will always be 10 meters. Likewise, there are some vectors which doesn't mind shifting, मतलब आप उनको shift कर सकते हैं. These are free vectors, these are free to move. Means suppose you draw this vector here or draw this A vector here, it doesn't matter, they don't mind. Means these vectors can be added whether they are added
at a particular place or they are shifted parallel to themselves, it doesn't matter. You will learn through these examples. Say, if I shift this vector parallel to itself, keeping its magnitude, means this magnitude I have to keep same, and if I am shifting it parallelly, then it remains same. Such type of vectors are called free vectors. Okay. In your mathematics, whatever vectors you will learn, all those vectors will always be free vectors. Whatever operations we will learn, we will always be learning on free vectors. There are some vectors. There is only one vector in physics that you will encounter that is not a free vector, and that is the position vector. That we will be talking about next. Okay. हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे जो वेक्टर के बारे में, दैट विल बी पोजीशन वेक्टर एंड दैट विल बी ए फिक्स्ड वेक्टर. ओके, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्री वेक्टर्स. से suppose this is a body, this is a block, and on which I have applied, this is a 5 Newton force in this direction, and I have 10 Newton force in this direction. Now I want to find out what is the net force. So what I will do, I will simply be adding these two vectors. So for adding these two vectors, whether I add it like this is the 5 Newton vector, this is the 10 Newton vector, or whether I add it like this 10 Newton vector, and I have shifted this 5 Newton vector parallel to itself. Means, can you find this vector and this vector, they are parallel, and this magnitude is 5, so I have kept this magnitude 5. Okay, I should have been more careful. When I have drawn this much magnitude as 5, I should have at least make it double. Okay. So what are free vectors again? Free vectors are those vectors. Free vectors are those vectors which remain unchanged if displaced parallel to itself. Free vector is that vector which remain unchanged if displaced parallel to itself. Okay, means shifted parallel to itself means, suppose this is a vector, okay, you shift it parallel, or say this is a vector, you shift it parallel to itself like this, or you shift it parallel to itself like this. Are you looking at me? Please look at me. Suppose this is the vector and you are shifting it parallel, means parallel can be in any of these directions. Okay, this can also be parallel, 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 this can also be parallel. Okay, parallel means they have to maintain the same distance between themselves. Okay, now using this concept of free vector, just find out the angle between these two vectors. So this is A vector, this is B vector. This angle is say 120 degree. Now you have to find the angle between this A vector and B vector. Okay, जब हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोल रहे थे तो मैं क्या बोला था, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू कीप आइदर द टेल्स और द हेड्स एट वन प्लेस व्हाइल यू आर फाइंडिंग आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. मतलब जब भी हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है ना, आइदर वी हैव टू जॉइन देयर हेड्स और वी हैव टू जॉइन देयर टेल्स. तो हम हेड या टेल कैसे जॉइन करेंगे, जब हम पैरेलली शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हेड एंड टेल अलग अलग जगह पे है. ऑन ए का हेड पे बी का टेल आके लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो दोनों हेड या दोनों टेल एक साथ नहीं है. तो हमको क्या करना है, हमको बी को ऐसे शिफ्ट करना है कि जैसे मान लो मैं बी को ऐसे शिफ्ट कर दिया, अभी बी का ये मैग्नीट्यूड जितना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड उतना ही है. ओके, तो अभी अगर ये शिफ्टिंग हो गया तो
ये तो पता चल रहा है दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. ओके ना. से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस एंगल इज 120 डिग्री. तो जब यहाँ पे जब तुम शिफ्ट किए बी वेक्टर को मान लो यहाँ पे शिफ्ट किए, तो दिस एंगल इज व्हाट, सो 60 डिग्री. सो दिस विल बी 60 डिग्री. सो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी 60 डिग्री. ओके. मान लो कोई बोलेगा कि नहीं मैं ऐसे शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं बी वेक्टर को शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं ए वेक्टर को शिफ्ट करूंगा. ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन. दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर. ओके, सो वो मान लो ए वेक्टर को ऐसे शिफ्ट किया. ओके, दैट इज ऑल्सो ओके. दिस इज 120 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री. अगेन यू सी कि यहाँ पे दोनों का हेड जॉइन है. हेड जॉइन है तब भी चलेगा, यहाँ पे टेल जॉइन था तब भी चलेगा. दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री. सो एंगल, अगेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करना है? Whenever you are finding the angle between two vectors, what we have to do is you have to join either the tails or you have to join the heads. मान लो टेल टेल के साथ ज्वाइन होता है, देन यू कैन फाइंड द एंगल, और हेड हेड के साथ ज्वाइन होता है, देन यू कैन फाइंड द एंगल. अगर हेड एंड टेल ज्वाइन नहीं है, देन यू हैव टू शिफ्ट वन वेक्टर सो दैट, ऐसे शिफ्ट करो जैसे कि एक का टेल दूसरा के टेल के साथ लग जाए या एक का हेड दूसरा का हेड के साथ लग जाए. तब जो छोटा एंगल होगा, means the angle which will be either be 180 degree or less than that is the angle between the vectors. Okay, अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, that is fixed vectors. One type was free vector, now comes to another type which is fixed vector. ये फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? मतलब ये वेक्टर को हम शिफ्ट नहीं कर सकते. जो वेक्टर हम अगर पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करेंगे और वो वेक्टर का आइडिया ही नहीं रहेगा. मीन्स लाइक पोजीशन वेक्टर इज द ओनली फ्री वेक्टर दैट यू आर गोइंग टू डील विथ. ओके, सपोज दिस इज माय एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस. दिस इज ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है. Okay, suppose the body is B and it is here. So this is the origin O. So this OB vector is called the position vector. Means it is signifying the position of this particle B with respect to origin. ये body कहाँ पे है? ये इस पॉइंट पे है. तो मान लो इसको अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, मीन्स सपोज आई एम शिफ्टिंग दिस OB वेक्टर, मीन्स सपोज आई शिफ्टेड दिस टू दिस प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ. मैं अगर ये OB वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये इसका पोजीशन और जो आइडिया हमको दे रहा था कि द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O, द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी B, ये आइडिया हम यहाँ पे लॉस कर चुके हैं. ओके, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इसको अगर मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे तो बॉडी नहीं है. यू कैन थिंक ऑफ दैट कि यहाँ पे तो बॉडी नहीं है, तो फिर ये पोजीशन वेक्टर कैसे होगा? सो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफाइड ओरिजिन. तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो आइडिया ही चला जाएगा. इसलिए दैट्स व्हाई वी डोंट शिफ्ट पोजीशन वेक्टर्स एंड दीज वेक्टर्स आर नोन एज फिक्स्ड वेक्टर्स. मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि पोजीशन vector is a fixed vector. It cannot be shifted parallel to itself. Any vector which, if shifted parallel to itself, parallel to itself, any vector which if shifted parallel to itself loses,
loses the very idea of itself is called fixed वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या है ना, पोजीशन वेक्टर इज ए फिक्स्ड वेक्टर। और किस वेक्टर को हम फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे ना, जो वेक्टर हम वी कैन नॉट शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। हम अगर पैरेलल टू इटसेल्फ अगर शिफ्ट करते हैं तो उसका जो उसके बिहाइंड जो भी आइडिया था, दैट आइडिया वी आर बेसिकली लूजिंग। तो हम ऐसे वेक्टर को शिफ्ट नहीं करेंगे। एंड यू रिमेंबर देयर इज ओनली वन वेक्टर फॉर यू विच इज ए फिक्स्ड वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अभी मान लो स्केलर में 5 होता था तो -5 होता था, वैसे वेक्टर में क्या है, वेक्टर में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर नेगेटिव है, मान लो ए वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर, से ए वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर, सो दीज आर टू, सो आई कैन से दैट बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के साथ इक्वल होना चाहिए एंड ए वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड बी ऑपोजिट, और आई कैन से कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शुड बी 180 डिग्री। तो हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, दो वेक्टर को हम नेगेटिव ऑफ ईच अदर कैसे बोलेंगे, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो। सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस मैग्नीट्यूड कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। आई कैन नॉट से कि ये 5 मीटर, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये 5 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन एक वेक्टर है और ये 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में ये एक वेक्टर है, तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर देयर मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड एज वेल एज देयर डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ओके, एक हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर कब हो रहा था, जब मैग्नीट्यूड सेम हो एंड एंगल 180 हो। तो तुम वहाँ से ही गेस कर सकते हो, इक्वलिटी मीन्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्रीज। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्रीज है देन इक्वलिटी ऑफ वेक्टर हो जाएगा, मीन्स दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है दैट इज 0 डिग्री। मान लो यू हैव टू गो फॉर दिस आइडिया कि मैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक को अगर एक दूसरे के ऊपर अगर दिखाता हूँ, मान लो दिस इज ए वेक्टर एंड से दिस इज अगेन बी वेक्टर, देन दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो इसी आइडिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज ए वेक्टर और अभी हम लोग शिफ्टिंग सीख गए हैं, तो से दिस इज अ फ्री वेक्टर, सो बी वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, बी वेक्टर यहाँ पे था तो पैरेलल टू इटसेल्फ हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, इसके ऊपर से बस इधर शिफ्ट कर दिए। सो आई एम सेइंग कि ये दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। नहीं तो तुम बोलोगे कि ये दोनों तो कहीं पे टच नहीं कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में मैं एंगल कैसे 0 डिग्री बोल रहा हूँ। ये टच कर सकता है, जब हम बी को इसके ऊपर अगर शिफ्ट कर दें तो इट विल टच हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोप्लानर वेक्टर्स। Coplanar vectors. Okay, co means you will see some more vectors which are collinear vectors. See, coplanar means same, planar means plane, means the vectors which are in the same plane. Suppose ये तुम अभी यही खाली देख लो, ये स्क्रीन में ये वेक्टर और ये वेक्टर, मान लो इनका नाम दे देते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। सो दीज 3 वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन। कौन सा प्लेन में है ना, ये स्क्रीन का प्लेन में। सो दीज 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लानर वेक्टर्स। ए बी सी आर कोप्लानर। कोप्लानर मीन्स सेम प्लेन, कोलिनियर मीन्स सेम लाइन।
कोलिनियर मीन्स सेम लाइन, लाइकवाइज को मीन्स सेम, कोप्लानर मीन्स सेम प्लेन. ओके, मान लो ओके आई से कि one vector is in this direction and the other vector is in this direction. Okay, there are two directions, one is dot and another is cross. Let me first say you what are these. Okay, first एक एरो के बारे में सोचो. एरो, धनुष. okay, ये ऐसे होता है. ओके, सो इस मान लो सोचो कि अभी ये एरो तुम्हारे तरफ आ रहा है तो कैसे दिखेगा. मान लो स्क्रीन से ये तुम्हारे तरफ आ रहा है तो कैसे दिखेगा. इसका खाली ये हेड पोर्शन यू विल बी सीइंग, मतलब तुमको खाली ऐसा डॉट ही दिखेगा, ये खाली डॉट ही दिखेगा. मीन्स उसका हेड से मान लो ऐसे आ रहा है तुम्हारे तरफ, मान लो ये भी ऐसे आ रहा है तुम्हारे तरफ, तो तुमको खाली अभी क्या दिखेगा ना, ये हेड ही दिखेगा. ये एरो का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट यू विल ओनली बी विजुअलाइजिंग. ओके, सो एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन. आउट ऑफ द प्लेन मीन्स कोई बुक का प्लेन पकड़ लो या अभी ये स्क्रीन का प्लेन से, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, नॉर्मली वी पॉइंट आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बुक, सो हमको ये बोलते हैं कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन. मतलब ये प्लेन से तुम जहां पे भी ये सिंबल को देखोगे वो प्लेन से वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है. मान लो अभी तुम स्क्रीन को देख रहे हो, सो दिस डॉट व्हाट इज सिग्निफाइंग कि वहां से एक वेक्टर मान लो अंदर से तुम्हारे तरफ आ रहा है. तुम्हारे उसका डायरेक्शन क्या है कि टुवर्ड्स यू फ्रॉम दैट प्लेन, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स यू, उसका डायरेक्शन ऐसा है. ओके, लाइक ये ऐसा होगा, तुम्हारे तरफ होगा. ओके, नाउ अगर मान लो अभी तुम्हारे तरफ से कोई एक जा रहा है, एक वेक्टर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, मतलब अभी तुम्हारे तरफ से कोई एक स्क्रीन के तरफ जा रहा है, तो वह कैसे दिखाई देगा. तुम्हारे तरफ से मान लो स्क्रीन की तरफ जा रहा है तो तुमको कौन सा है, पीछे तरफ दिखाई देगा एरो का, तो दैट विल बी ए क्रॉस. जब कोई भी एरो का तुम पीछे तरफ देखोगे तो यू विल फाइंड अ क्रॉस. मान लो तुम कोई तीर मार रहे हो, तो जब तीर मार रहे हो तो तुमको कौन सा हिस्सा दिखेगा, तीर का पीछे तरफ वाला हिस्सा, एंड दैट विल बी ए क्रॉस. ओके, सो दिस इज टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, और इसको टुवर्ड्स भी बोलते हैं या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर भी बोलते हैं. दिस इज इनटू. ओके, हाँ, तो हम ये कोप्लानरिटी डिस्कस करने के लिए ये डिस्कस किया. सो लेट अस सी कि मान लो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो वेदर दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट. मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब ये है एक वेक्टर इज सपोज दिस पेन एंड एक वेक्टर इज टुवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. तो ये दोनों का बीच में एंगल क्या, वेदर दीज आर कोप्लानर वेक्टर और नॉट. यस, दीज आर कोप्लानर वेक्टर. क्यों? क्योंकि ये प्लेन पे दोनों वेक्टर है. मान लो ये प्लेन पे, ओके, सो मान लो ये दोनों पेन है, ये दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा, ये दोनों मान लो दो ठो वेक्टर है, ये दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा, ऐसा होगा. मान लो अभी एक वेक्टर में बोल रहा हूँ कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो वेदर दीज आर इन द सेम प्लेन और नॉट. ओके, तो यस दे आर इन द सेम प्लेन, क्योंकि ये वाला प्लेन देख रहे हो, ये वाला प्लेन पे ये दोनों वेक्टर है. ओके, दीज आर इन द सेम प्लेन, ये दोनों वेक्टर्स ये प्लेन पे है. ओके, तो जब भी कोई बोलेगा कि लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन कि ये वेक्टर और ये वेक्टर वेदर दे आर इन सेम प्लेन, एक जा रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और ये वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर. सो इफ समबडी आस्क यू कि ये वेक्टर वी वेक्टर दोनों कोप्लानर है क्या, यस दे आर कोप्लानर. क्यों? मान लो अभी एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स जा रहा है प्लेन की तरफ, और एक ये है वेक्टर है, तो ये दोनों भी एक ही प्लेन पे है, ये वाला प्लेन पे. ओके, मान लो अभी थर्ड क्वेश्चन में पूछता हूँ
ए वेक्टर, बी वेक्टर और मान लो ये एक है सी वेक्टर, आर दीज वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर? नहीं, ये तीनों को हम सेम प्लेन में नहीं ला सकते, क्योंकि ए और बी वेक्टर कौन सा प्लेन पे है? ये प्लेन पे है, स्क्रीन वाला प्लेन पे। लेकिन सी वेक्टर कौन सा प्लेन है? सी वेक्टर तो उसका परपेंडिकुलर में आ गया, ये प्लेन का, मान लो ये स्क्रीन वाला प्लेन है तो सी वेक्टर तो ऐसा है, जबकि ये दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर यही प्लेन में रह गए। सी वेक्टर क्या हो गया? सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, so these three vectors are not coplanar. Here I can say a vector, b vector, c vector are not coplanar, मतलब सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन a vector and b vector are coplanar. Okay, let us conclude today's lecture of vector here. We will continue in the next lecture.